Good morning, church. Once again, a warm welcome for this online Sunday service. गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन सभा में। We are so glad to connect with all of you through every possible medium. हम जिस भी किसी मीडियम से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही आनंद की बात है कि हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। Amen. We know that we are going through some very tough and challenging times. हम जानते हैं कि हम बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय से होके गुजर रहे हैं। But we want to encourage you that God is with you wherever you are. लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर आपके संग है। You may be out of sight or out of touch or out of contact from your dear and loved ones. हो सकता है कि आप अपने प्रियजनों के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। But God who gave His life for you and me, He is always with you. लेकिन वो परमेश्वर जिसने अपना जीवन आपके और मेरे लिए दिया है, वो हमेशा हमारे साथ And है। according to His word and His promise, He is always with us. और उसके वचन और वादे के अनुसार वो हमेशा हमारे साथ है। And for this morning, we will turn our Bibles to Psalm chapter 1, verse number 1, 2, and 3 we will be reading. और आज की सुबह हम भजन संगीता 1 और उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। And it says, "Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers." क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। They are like trees planted along the river bank, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है bearing fruit each season. और अपनी ऋतु में फलता है Their leaves never wither, and they prosper in all they do. और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। This morning I want to talk on the subject of planted. आज की सुबह मैं बोए जाना इस विषय में बात करूंगा। God has planted us in very different places. परमेश्वर ने हमें अलग-अलग स्थानों पर बोया है। And in the scripture that we have just now read, और अभी जो भाग हमने पढ़ा उसमें Bible describes this man as a blessed man. बाइबल जो ऐसे पुरुष को जो बोया गया है उसको एक आशीषित व्यक्ति करके बताती है। And he says that he has his foundation established in righteousness and holiness. और बाइबल हमें बताती है कि उसका जो नींव है वो धर्मीपन और शुद्धता में है। And this man continually meditates on the word of God. और ये जो पुरुष है वो लगातार परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है। When we look at the word planted, जब हम बोए जाना इस शब्द को देखते हैं, the word planted indicates that the tree did not find himself there by its own doing. बोए जाने का अर्थ ये है कि जो पेड़ है वो अपने आप उस स्थान पर नहीं गया, But it was put there by someone else. लेकिन कोई है जिसने उसको वहां पे बोया। The word plant means बोए जाने का अर्थ है set or place in a particular position. किसी भी स्थान को एक तरीके से रखना। God put man in a place where he can blossom and flourish in the presence of God. परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसे स्थान पर रखा जहां पे वो पनप सके, फूल सके और फल सके। And we see that happening in the Garden of Eden. और ये हम अदन की वाटिका में देखते हैं That God placed Adam and Eve there in an atmosphere where they can flourish, and God says that God planted them or put them there in that place. जहां पे परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ऐसे जगह पर रखा, एक ऐसे वातावरण में रखा जहां पे वो फल सकते हैं और फूल सकते हैं। When a farmer thinks of planting a tree, जब एक किसान एक पेड़ को बोने की बात करता है, he looks for a place वो एक ऐसे स्थान को ढूंढता है that will give the tree all conditions necessary to flourish and blossom. एक ऐसे स्थान को ढूंढता है जो उस पेड़ को ऐसे पोषण प्रदान करे, ऐसा वातावरण प्रदान करे कि वो फूल सके और फल सके। God knows the best conditions for us to blossom or to flourish in our life. परमेश्वर जानते हैं कि हमें पनपने के लिए, हमें फलने और फूलने के लिए हमें कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता है। And just like we read in the scripture, और जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा, it says that God planted man by the rivers of water. और इसमें ऐसा लिखा है कि बहती नालियों के किनारे परमेश्वर ने उस मनुष्य को लगाया। That river bank or the river fuels the growth by giving nutrients and supplying what the tree needs. और वो जो बहती नाली है वो पेड़ को पोषण देती है और उसको ईंधन देती है ताकि वो बढ़ सके। God exposes man to this multiple streams of water or of sources that can enrich him in the place where he is planted. तो जहां पर मनुष्य को परमेश्वर ने रखा है वहां पर मनुष्य को वो परमेश्वर जो है वो अलग-अलग चीजें प्रदान करते हैं ताकि वो बढ़ सके और फल सके और फूल सके। So he is planted near the river from where the water it is getting and the nutrients it is receiving and it is growing big and strong. तो उसको ऐसे
बहती नाली के किनारे लगाया गया है जहां पे वो पानी से अपने पोषण को ले सके और वो बढ़ सके। And God calls us to be people who are like that. और परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम ऐसे जन हो जो कि नदी के किनारे, बहती नदी के किनारे बोए गए हों। And if we come to Psalms chapter 92, यदि हम भजन संगीता 92 पढ़ें, verse number 12 and 13, उसका 12वां और 13वां वचन, it says, "The righteous shall flourish like a palm tree. धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे He shall grow like a cedar in Lebanon. और लेबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। Those who are planted in the house of the Lord हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर shall flourish in the courts of our God." हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले We फलेंगे। are seeing that we are planted in the house of और God. यहाँ पे परमेश्वर के भवन में रोपे जाने की बात हो रही है। The house of God refers to a church. और परमेश्वर का भवन का मतलब एक कलीसिया, It refers to a place where God's presence dwells. एक ऐसा स्थान जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, It refers to a place where prayers are offered, एक ऐसा स्थान जहाँ पे प्रार्थना किया जाता है, where sacrifices and commitments are made at the altar of जहाँ पे God. बलिदान और समर्पण परमेश्वर के वेदी पे किया It is जाता a है। place where word of God is taught and preached. एक ऐसा स्थान जहाँ पे परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, Prayers are being offered for people. लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, Fellowship among believers take place. विश्वासी जन के बीच में फेलोशिप होता है। So this is what God is saying. The righteous man is planted in such a place, तो यही ये वचन बताता है कि एक धर्मी जन ऐसे स्थान पर रोपा गया है and he shall flourish in the courts of और वो God. परमेश्वर के आंगन में फूलेगा और फलेगा। When we listen to the word plant, जब हम रोपे जाना इस सब शब्द को सुनते हैं when we say planted, या फिर बोए जाना, it says commitment and permanency. उसका अर्थ है समर्पण और अस्थाई बने रहना। Once planted, a seed is committed to the place where it is put down. एक बार एक बीज को रोपा गया तो वो उस स्थान में अस्थाई हो जाता है। Once planted, a seed is committed to the spot. उस जगह पे जहाँ पे उस बीज को बोया गया उसके लिए वो समर्पित हो जाता It है। will never leave its location. वो अपने स्थान को कभी नहीं It छोड़ेगा। will let its root go deeper वो अपने जड़ को और भी गहराई में लेकर जाएगा where it is planted. जहाँ पे उसको बोया गया है। And if we come to Jeremiah chapter 17 verse number 7 and 8, if we read यदि हम यिर्मयाह 17 उसका 7 और 8 पढ़ें, Jeremiah chapter 17 verse number 7 and 8. यिर्मयाह 17 उसका 7 और 8, But blessed are those who trust in the Lord धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, and have made the Lord their hope and confidence. जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। They are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। In Psalms chapter 1 we saw that a blessed man is planted near the river bank or the river side. भजन संगीता 1 में हमने देखा कि एक आशीषित व्यक्ति जो है वो बहती नाली के किनारे पे लगा हुआ है। And then in Psalms 92 we saw that a righteous man is planted in the house of God. और भजन संगीता 92 में हमने देखा कि एक धर्मी जन जो है परमेश्वर के भवन में रोपा गया है। Then again in Jeremiah we are seeing that this blessed man and the man who trusts in the Lord is like a person who's planted along a river bank and he is evergreen, he never goes dry. और यिर्मयाह में हम ये देखते हैं कि वो जो धर्मी जन है वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा होगा और वो कभी न सूखेगा। And it says that they are not bothered by the heat or worried by the long months of drought. और वो धाम से कभी ना वो विचलित होंगे और कभी भी वो सूखेंगे नहीं। Their leaves stay green and they never stop producing fruit. उनके जो पत्ते हैं वो हरे रहेंगे और वो हमेशा फलते रहेंगे। God wants us and expects us to be planted. परमेश्वर चाहते हैं और उनकी ये इच्छा है कि हम रोपे जाएं। If we keep transplanting ourselves from one place to another, यदि हम अपने स्थान को एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहें, we are not allowing our root network to grow stronger and thicker and bigger. हमारे जड़ का जो बुनाव है उसको हम इतना मजबूत नहीं होने दे रहे हैं कि वो बढ़े और बहुत ही ज्यादा मजबूत बने। The word planted conveys the meaning of being stationary or permanent.
बोए जाने का अर्थ है कि एक जगह पे स्थिर होना और अस्थायी होना। When something is planted, it does not move around. It is in a fixed location. यदि किसी चीज को रोपा गया है तो वो एक स्थिर स्थान पे होता है, वो यहाँ से वहां हिलता नहीं रहता। In the same way, बिल्कुल उसी we प्रकार who follow Christ and follow the teachings of Lord हम Jesus, जो यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करने वाले हैं, we followers, we cannot grow to our full potential हम अपने क्षमता की उत्तमता तक नहीं पहुंच पाएंगे unless we are planted where God wants us to be. जब तक हम उस स्थान पर रोपे न जाए जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम रहें। Staying planted doesn't mean that we stick to a place or stay at a place and just count our days. रोपे जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम एक स्थान पर रहें और सिर्फ अपने दिन को गिनते रहें। Staying planted is a positive mindset. रोपे जाने का अर्थ है एक सकारात्मक सोच। It's 100% commitment mindset. वो 100% समर्पित होने का सोच है। It's a mindset that says I will be fruitful in this place where God has kept me irrespective of the circumstances. वो ऐसा सोच है जो बोलता है कि मैं फलवंत होऊंगा इस स्थान पे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो। We know one thing, that trees can't plant themselves on its own. कोई भी बीज अपने आप को खुद से बो नहीं सकता, Somebody has to plant them. किसी ना किसी को उसको बोना होगा। So when Bible says that blessed man is planted next to the river bank, तो जब बाइबल हमें बताती है कि जो एक धर्मी जन है, एक आशीषित व्यक्ति है, वो नदी के किनारे पे लगा हुआ है, and when the Bible says that a righteous man is planted in the house of God, और जब बाइबल हमें बताती है कि एक धर्मी जन परमेश्वर के भवन में रोपा गया so है, who is planting them? तो उनको कौन रोप रहा है? Have we ever wondered why it happened that I came to this church or the place of work or the place you are living? How did it happen that I'm living here or going to that job or to that work? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, या जो नौकरी आप कर रहे हैं, या जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहाँ पे कैसे पहुंचे, या किसने आपको वहाँ पर भेजा है? Have you ever thought that the place where you are right now, how everything happened so that you are there? क्या आप कभी सोचते हैं कि जिस स्थान पर आप हैं, ये कैसे हुआ कि आप उस स्थान पर पहुंच गए? We all may have different answers to that. उस सवाल के लिए हम सबके पास अलग-अलग जवाब हो। But could it be possible that it was God who planned and prepared and planted us in every circumstance that we are facing at this time in our life? लेकिन क्या यह संभव है कि वो परमेश्वर है जिसने योजना बनाई और इस स्थान पर हमें भेजा जहां पर आज हम हैं? I just want to quickly share 3 thoughts with you. मैं तीन बिंदु आपसे बांटना चाहूंगा। The first one, पहला बिंदु, God has planted me. परमेश्वर ने मुझे रोपा है। We see the first thing being planted by God, and that was in Genesis. We see God planting the Garden of Eden. और सबसे पहले हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका को रोपा। God is the master gardener from the beginning of time. परमेश्वर जो है वो सबसे अच्छे माली है शुरुआत से। He planted a garden in Eden and put man or planted man inside that garden. उन्होंने अदन की वाटिका को रोपा और सबसे पहले इंसान को उन्होंने अदन की वाटिका में रोपा। And God fellowshipped with man at a place where God wanted them to be, or in other words, where God planted them, God fellowshipped with them. जहां पे परमेश्वर ने उनको रोपा, वहीं पर ही परमेश्वर आके उनसे संगति करते थे। But through disobedience to God's word and God's voice, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर Adam and Eve uprooted themselves from the place from where God had planted them. आदम और हवा ने अपने जड़ को उस स्थान से उखाड़ लिया जहां पे परमेश्वर ने उनको रोपा था। And the consequences we are still facing as a mankind. और उसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। We may think that, somehow I landed this job or somehow I came to this church. हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि कैसे ना कैसे मैं इस जगह पे आ गया, इस चर्च, इस कलीसिया में आ गया और इस नौकरी में आ गया। Or you may be thinking that I was just scrolling through the YouTube or Facebook and somehow I just landed on this channel or this video. या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं तो इस YouTube और Facebook देख रहा था और कैसे ना कैसे करके मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ। Or just someone sent you the link and you just clicked and you're still watching it. या फिर हो सकता है किसी ने आपको लिंक भेजा, आपने उस लिंक को क्लिक किया और आप बस इसको देख रहे हैं। We may think it just happened. आप सोच सकते हैं कि ये बस हो गया। But when we look from God's perspective, लेकिन यदि आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, there is nothing that happens as an accident in this तो world. कोई भी चीज सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होता है इस दुनिया में। God plants with a purpose. परमेश्वर एक उद्देश्य के तहत योजना बनाते हैं। And it is God who plants. और वो परमेश्वर है जो योजना बनाते हैं। And if we come to Numbers chapter 24 verse number 6, यदि हम गिनती की पुस्तक 4 और उसका 6 पढ़ें, Numbers chapter 24 verse number 6,
गिनती की पुस्तक 24 और उसका 6 it says the prophet is telling about Israelites here. यहाँ पे भविष्यद्वक्ता इजरायलियों के बारे में बता रहे They हैं। spread before me like palm groves, like gardens by the riverside. वे तो नालों की घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकों के समान ऐसे फैले हुए हैं। They are like tall trees planted by the Lord, like cedars beside the waters. जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू हो। So the prophet is telling about Israelites, the people of God, that it is God who has planted them, and they are flourishing, and it is as if they are planted by the riverside, even though they were in the wilderness when this scripture was said. और यहाँ पे भविष्यद्वक्ता इजरायलियों के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इजरायली जन जो है वो परमेश्वर द्वारा बोए गए हैं और वो पनप रहे हैं, फल रहे हैं, भले ही वो मरो स्थल में हो, लेकिन फिर भी वो पनप रहे हैं। And if we come to Jeremiah chapter 2 verse number 21, यदि हम यिर्मयाह 2 और उसका 21 पढ़े, and this is God telling और यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं again about his people, फिर से वो इजरायलियों के बारे में बोल रहे and he हैं। says, but I was the one who planted you. मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता में उत्तम बीज करके लगाया था। I was the one who planted मैंने you. तुझे बोया था। And I believe this is what God telling to all of us this और morning, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर हम सबसे यही बोल that रहे हैं I am the one who planted कि you. मैं हूँ जिसने तुम्हें रोपा है। It was not an accident. ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, It was not a surprise. ये एक आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं It just है, didn't happen on its own. ये अपने आप नहीं हो गया, But it was I who planted लेकिन वो you. मैं था जिसने तुम्हें रोपा। Now the question comes, why did he plant अब us? सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने हमें रोपा क्यों? Where I am, what I am supposed to do. मैं जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं करूँ क्या? And the reason why he has planted us, we can see in Isaiah chapter 61 verse number 3. और जिस कारण से परमेश्वर ने हमें रोपा है वो हम यशायाह 61 और उसका 3 में देखते हैं। And it says, to all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In their righteousness, they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. और सियानों के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। And this is what God is telling, और ये परमेश्वर बोल रहे that हैं I have planted you like oaks, कि मैंने तुम्हें लगाया है, that the Lord has planted you कि परमेश्वर ने तुम्हें बोया है for his own glory. कि तो हम उनको महिमा दें। Wherever we may be planted, हम जहाँ कहीं भी रोपे गए हैं, we are supposed to give glory to God from that place. हमें इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे रोपा है कि उस स्थान से हम परमेश्वर को महिमा दें। As a tree, how can a tree glorify God? एक पेड़ जो है वो परमेश्वर को महिमान्वित कैसे कर सकता I है? believe one of the ways of glorifying God is by being fruitful. और मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर को महिमा करने का एक तरीका है कि हम फलवंत So हों। God wants us to be fruitful where He has planted us, जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रोपा है वहीं पर ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत and हों। in that way we glorify God, tell God and give glory to God wherever we may be or whatever circumstance we may be और फलवंत in. होने से हम परमेश्वर को महिमान्वित कर सकते हैं, चाहे हम किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो। There are many times when we face life's challenges. बहुत बार हम जीवन की चुनौतियों से होकर गुजरते We हैं often tend to look towards other places, और हम हमेशा दूसरे स्थान को देखने लगते हैं उस समय पर, forgetting that where I am and what I am doing और हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या कर रहे हैं, or what I am going through. या फिर हम किस परिस्थिति से गुजर रहे It is हैं। possible that it is from God. हो सकता है कि ये परमेश्वर के द्वारा हो, And sometimes there is a tendency that we may act like Lot in the Bible. और कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं कि हम बाइबल में लूत के समान व्यवहार करते We हैं। can read the whole story in Genesis chapter 13. आप उत्पत्ति 13वें अध्याय में आप पूरे कहानी को पढ़ सकते हैं वहां And पर। Abraham and Lot, they both were relatives, but there was a quarrel between their shepherds. अब्राहम और लूत जो है वो दोनों रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके चरवाहों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। They had grown so big that there was a quarrel between their shepherds. वो उतने बड़े हो गए थे कि उनका जो चरवाहे हैं उनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया। Abraham tells Lot to choose a place or a land and go that side, and Abraham says, I'll go the opposite direction. अब्राहम लूत को बोलता है कि तुम किसी भी स्थान को चुन लो और तुम उधर जा सकते हो और मैं दूसरे दिशा में चला जाऊंगा। And in verse number 10, और 10वें वचन we see में Lot take a long look at the fertile plains of the Jordan Valley in the direction of Zoar.
The whole area was well watered everywhere, like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। So Lot looks at these fertile lands तो लूत जो है वो इस सींची हुई तराई को देखता and he है decides to go in that direction. और वो ये निर्णय लेता है कि वो उसी दिशा में जाएगा। And he forgot this thing that even before these fertile lands came in his view, he was already so blessed. वो इस चीज को भूल गया कि ये जो सींची हुई तराई है उसके आने से पहले भी लूत पहले से ही बहुत ज्यादा आशीषित है। He forgot that his blessings are not based on a place, but it's based on being with the man of God, with Abraham, and being connected with वो ये Abraham. भूल गया कि उसकी जो आशीषें है वो किसी स्थान की वजह से नहीं, लेकिन एक परमेश्वर के जन से जुड़े रहने की वजह से, अब्राहम से जुड़े रहने की वजह से है। The green fertile land or the green pastures, there is nothing wrong in that. जो हरी तराइयां हैं उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, Because King David says in Psalms 23, क्योंकि भजन संगीता 23 में राजा दाऊद ऐसे कहते and he हैं says, He maketh me to lie down in green कि pastures. परमेश्वर हमें हरी तराइयों में ले जाता है। But the difference is this. लेकिन फर्क यहाँ पर है, David is telling it is God who leads me into those pastures. राजा दाऊद ये कह रहा है कि वो परमेश्वर है जो हमें इस हरी तराई में लेके जा रहा But है। in Lot's case, लेकिन लूत के केस में it was his eyes, his own desire that was driving him towards those fertile वो उसकी lands. खुद की अभिलाषा, वो उसकी खुद की आंखें थी जो उसको उस हरी तराई में लेके जा You रही can थी। read the following chapter, you will know the end of his story. आप इसके बाद के अध्याय को पढ़ सकते हैं, आपको कहानी का अंत पता चल It was जाएगा। not good for Lot. और लूत के लिए अच्छा नहीं था। What are those fertile lands that we are looking towards? हम किस हरी तराई की ओर देख रहे हैं? What are those things that we look up and we want to go in that और direction? ऐसे कौन सी चीजें जिसको हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम उधर ही चले जाएं? When God leads us, जब परमेश्वर हमारा अगुवाई करते हैं, even the remotest of the deserts भले वो मरुभूमि ही क्यों ना हो, will be much better than any pleasant pastures. कितनी भी अच्छी हरी तराई से ज्यादा अच्छा वो मरुभूमि होगा जहां परमेश्वर ने हमें रखा है। So we need to be sure, we need to know that God has planted us. तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमें रोपा है। It is God who says that I am the one who planted you. परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें रोपा। You are not an accident, तुम एक एक्सीडेंट नहीं हो, but you are planted to glorify my name. लेकिन तुम्हें इसलिए रोपा गया है कि तुम मेरे नाम You को are महिमान्वित planted in that करो। workplace so that you can glorify my name in that आपका place. कार्य स्थान पे आप इसलिए है कि आप परमेश्वर के नाम को महिमा ला You are सके। planted in your colony so that you can glorify God's name and spread God's love to other people. आपकी कॉलोनी में आप इसलिए हैं ताकि आप आपकी कॉलोनी के लोगों को आशीषित करें और परमेश्वर को नाम को महिमान्वित करें। So along with that, what I am supposed to do? उसके साथ मैं क्या करूं? So that brings me to my second point. वो मेरे अपने दूसरे बिंदु पर लेके The आता second है। point is use the resources. मेरा दूसरा बिंदु है स्रोतों का इस्तेमाल करें। So it's one thing that we are being planted, पहली चीज ये है कि हमें रोपा गया but है, it's important to use every available resource that God has provided to us so that we can grow where we are planted. ये बहुत जरूरी है कि जो भी स्रोत परमेश्वर ने हमें दिया हम उसका इस्तेमाल करें ताकि जिस जगह पे हमें बोया गया है वहां पर हम बढ़ सकें। Just like any planted tree, बिल्कुल किसी भी रोपे हुए पेड़ के समान which sucks in water and nutrients from the fertilizers through the roots so that it can grow. जो पेड़ है उसके अपने जड़ के द्वारा पोषण को मिट्टी से लेता है ताकि वो बढ़ सके। In the same manner, we need to absorb everything that God has given to us into our lives so that we can grow spiritually and in every place where God has planted उस us. पेड़ के समान हमें भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको अपने अंदर लेके परमेश्वर में आगे बढ़ना है। And nobody can say that I have no और resources. कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास तो कोई स्रोत ही नहीं है, Because as per Psalm chapter 1 verse number 3, क्योंकि भजन संगीता 1 उसके 3 के अनुसार it says, He shall be like a tree planted by the rivers of water. उसमें ऐसा लिखा गया कि वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे पे लगाया हुआ That है। means that this tree has been planted intentionally near a source so that it can grow. तो इरादतन इस पेड़ को ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहां पर उसको पोषण मिले और वो बढ़ पाए, That brings forth its fruit in its season, ताकि वो अपने ऋतु में फल को लेकर आए, whose leaf also shall not wither, उसके पत्ते भी ना मुरझाएं, and whatever he does shall और prosper. वो पुरुष जो भी करे वो सफल होगा। So this tree has been planted near a source for it to grow. तो वो जो ये जो पेड़ है वो
ऐसे स्थान पर लगाया गया ताकि उसको ऐसे स्रोते मिले जिससे वो बढ़ सके। In the same manner, when we say that, when we believe that God has planted me wherever I am, तो यदि हम ये विश्वास करते हैं कि जहाँ पर है वहाँ पर परमेश्वर ने हमें रोपा है, we have to also believe that He has already arranged all the resources needed for me to grow in that तो place. हमें इस चीज पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हर उस चीज का प्रबंध किया है जिसकी हमें आवश्यकता है उस जगह पर बढ़ने के लिए। It is no good to have resources and not to use it. ये अच्छा नहीं है कि हमारे पास स्रोत है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। In the Garden of Eden, we see that 4 rivers were flowing in it. अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि 4 नदियां अदन की वाटिका में बह रही थी। If we know our God, the God of the Bible, यदि हम परमेश्वर बाइबल के परमेश्वर को जानते He हैं always gives us more than we ask or imagine. तो हमारे परमेश्वर ऐसा है कि हमें हमारे मांगने से बढ़कर वो हमें देता So है। there are enough resources around us, more than we could ever imagine in our mind. तो हमारे आसपास इतने स्रोत हैं जिसकी हम अपने दिमाग में कल्पना भी नहीं कर What we सकते। need is for God to open our eyes. तो हमें चाहिए, हमें आवश्यकता जिस चीज की है कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे। Many times we may be crying out to God just like Hagar हो सकता है हगार के समान हम कई बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं for water. पानी के लिए, And we need to pray, Lord, open my eyes लेकिन हमें प्रार्थना ये करनी कि परमेश्वर हमारी आंखों को so खोल that I दो, may see the resources that you have given to me so that I can grow where I am planted. ताकि मैं उन स्रोतों को देख पाऊं जहाँ पे आपने मुझे दिया है, जहाँ पर मुझे बोया है। Some of the resources that I can name that can help us is this. कुछ स्रोते हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ जो हमें मदद कर He सकता has है। given His word, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया His है, promises. उसके वायदे, His Holy Spirit lives in उसकी us. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करती He है। has given His Holy Bible. There are many books and sermons and messages that are available. परमेश्वर ने पवित्र बाइबल हमें दिया है, कई संदेश हैं, कई मैसेजेस हैं जो उसने हमें दिया है। All these resources are available for ये us. सारे स्रोत हमारे लिए उपलब्ध हैं। So what are we doing with these resources in our life? तो ये स्रोत जो हमारे पास है उसके साथ हम क्या कर रहे What are हैं? we doing with the sermons that we hear Sunday after Sunday? जो हर रविवार को हम संदेश सुन रहे हैं उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? God has given you enough for you to grow wherever you are. परमेश्वर ने आपको उतना दिया है कि जिस स्थान पर आप हैं वहां पर आप पनप सकते Moses हैं। was crying before God, how can this Red Sea be parted? मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर ये लाल सागर कैसे भाग होगा? God said, Moses, use your rod. परमेश्वर ने कहा कि मूसा तुम अपनी लाठी का इस्तेमाल करो। Moses, you have Jethro with you. मोसेस तुम्हारे पास यत्रो है, He is the resource that will help you. वो ऐसा स्रोत है जो तुम्हारी मदद करेगा। Elijah, the ravens will come and feed you. एलिया कौवे आके तुम्हारा पोषण करेंगे। God planted Elijah near Brook Kerin. परमेश्वर ने एलिया को ब्रूक चेरित नाले के किनारे पे रोपा था। And we thank God that he stayed in that place. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एलिया उस स्थान पर रुका। Because there was every resource or every provision needed for him to grow and to be sustained in that क्योंकि उसके लिए place. हर एक स्रोत, हर एक प्रबंध वहाँ पे उपलब्ध था ताकि वो उस जगह पर बढ़ सके। Let's not fight with God-given resources. परमेश्वर के दिए गए स्रोतों से हम लड़ाई झगड़ा ना करें। Let's not fight with God-given resources. परमेश्वर के दिए गए स्रोतों के साथ हम झगड़े ना। Joseph is another great example from the Bible. यूसुफ एक और ही बड़ा उदाहरण है बाइबल से। His brothers sold him. उसके भाइयों ने उसको बेच डाला। He went from pit to Potiphar's house to prison to palace. वो गड्ढे से पोतीफर के घर से, जेल से फिर महल में जाता है। But in every place what we see in Joseph's life is this. लेकिन हर एक स्थान पर हम जो यूसुफ के जीवन में देखते हैं वो ये है That he used his resources to do something and God was with him and he was blessed. जो जोसेफ जो है वो हर एक स्थान पर जो स्रोत उसको मिला है उसका वो इस्तेमाल करता था और परमेश्वर उसको आशीषित करते He थे। was not complaining about where God had planted him. जहाँ पे परमेश्वर ने उसको रोपा था वहाँ पर वो गुड़गुड़ाता या बुड़बुड़ाता नहीं Of था। course he didn't understand what was happening to him. हाँ, हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा But he है। was doing whatever he could with the available resources in whatever place he was. लेकिन जिस भी स्थान पे था और वहाँ पे जो स्रोत उसके पास थे उससे वो जो भी कर सकता था वो And one day he stood in front of king in palace. और एक दिन वो महल में राजा के सामने खड़ा होता है। And the third point that I want to share is this. और तीसरा बिंदु जो मैं बांटना चाहता हूँ वो ये है, Planted with purpose. एक उद्देश्य के तहत रोपे गए हैं। We are planted with a हम एक purpose. उद्देश्य के तहत रोपे गए हैं। God has
planted us. परमेश्वर ने हमें रोपा है। He has given us enough resources for us to grow in the place where He has planted परमेश्वर us. ने हमें वो स्रोत दिए हैं ताकि हम जहाँ पे बोए गए हैं वहाँ पे पनपे बढ़ें। If we don't see the resources around us, then we may have to ask God to open our eyes so that we may see what God has given for यदि हम us. अपने आसपास स्रोत को नहीं देख पा रहे तो हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दो ताकि हम देख पाए कि आपने हमारे लिए क्या रखा है। And the third one, planted with a और purpose. तीसरा बिंदु है कि हम एक उद्देश्य के तहत रोपे गए God हैं। plants us in a ministry or a church or a job or a location for a reason. परमेश्वर हमें सेवकाई में या किसी कलीसिया में या किसी जॉब में या फिर किसी जगह स्थान पर एक उद्देश्य के तहत रोपते हैं। You will be challenged in every environment that you are planted in. जिस भी वातावरण में आप रोपे गए हैं आपको चुनौतियां जरूर आएंगी। God showed me that every situation that I want to run from is a situation that God wants to use to make me stronger. परमेश्वर हमें दिखाना चाहते कि जो जिस भी परिस्थिति से हम भागना चाहते हैं वही वो परिस्थिति है जो हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। Being planted means I choose to stay even when I want to go. बोए जाने का अर्थ है कि मैं ये चुनाव करूंगा कि मैं उसी स्थान पर बना रहूंगा हालांकि मेरा मन हो रहा है कि मैं उस स्थान से चला जाऊं। Yes, there is no doubt on this that there are times when we need to walk away. हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम वहां से चले जाना चाहते हैं। There are sins or sinful lives or sinful lifestyles that we need to walk away or go away from. वो पाप भरा जीवन है जिससे हमें दूर जाना है। There are times in our lives where we need to let a chapter end and start a new chapter. कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें एक अध्याय को खत्म करके जीवन के दूसरे अध्याय में प्रवेश करना होता But है। sometimes the best decision you can make is to stay when it would be easier to go. लेकिन कई बार सबसे उत्तम निर्णय जो हम ले सकते हैं वो है कि हम वहीं पर ही बने रहें जबकि जाना हमारे लिए आसान लग रहा A है। seed as small as it seems, बीज हो सकता है छोटा दिखे it carries a God-given purpose and destiny. लेकिन उसके पास परमेश्वर द्वारा दिए गए एक नियति है। A seed cannot grow to its full potential unless it is planted. जो बीज है वो अपने क्षमता की उत्तमता तक नहीं आ सकता जब तक उसे रोपा ना And जाए। every planting is done with a purpose. और हर एक रोपा जाना एक उद्देश्य के तहत होता है। Situations may not be perfect. हो सकता है परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी ना हो, Situations may not be perfect. आपकी परिस्थितियां अच्छी ना हो, But it will perfect us. लेकिन वो हमें सिद्ध कर देगी। We need to be assured that God has planted us with a purpose. हमें ये सुनिश्चित होना है, हमें इस चीज का निश्चय होना है कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के तहत रोपा है। A seed always carries the purpose and potential in it. एक बीज के अंदर हमेशा एक उद्देश्य और एक नियति होता है। Are our roots growing? क्या हमारे जड़ बढ़ रहे हैं? In Esther chapter 4 verse number 14. एस्तर की पुस्तक 4 और उसके 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं। And it says, for if you remain silent at this time, क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहे relief and deliverance for the Jews will arise from another place. तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। But you and your father's family will perish. परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। And who knows but that you have come to your royal position for such a time as फिर this. क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। Esther, you have to remember this, एस्तर तुम्हें ये याद रखना है that you are planted with a कि purpose. तुम्हें एक उद्देश्य के तहत रोपा गया Yes, you है। didn't understand what happened and why I am in this royal palace. हो सकता है एस्तर को समझ में ना आ रहा हो कि मैं इस महल में क्यों हूँ, But you need to understand, लेकिन तुम्हें समझना होगा you were not brought to this कि palace. तुम इस महल में आई नहीं, You were not kidnapped into this तुम्हें palace. किडनैप करके इस स्थान पर नहीं लाया गया, But God planted you in that लेकिन palace. परमेश्वर ने उस महल में तुम्हें रोपा है। And that planting had a purpose. और उस रोपे जाने के पीछे एक उद्देश्य है। And that purpose, Esther, is this, that you can save God's people. एस्तर ये उद्देश्य ये है कि तुम परमेश्वर के लोगों को बचा सकती हो। Sometimes what we go through or where we are living or what we face may not make any sense to कई us. बार जहाँ पे हम रह रहे हैं उस हमें पता नहीं हम क्यों रह रहे हैं, Because we may feel like nothing is happening in my life. क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होगा कि हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं But there रहा is a है। purpose behind where you are in your life. लेकिन जहाँ पर आप हैं उसके पीछे एक उद्देश्य And है। if you keep on using the resources that God provides you and you keep growing, और यदि आप उन स्रोतों का इस्तेमाल करते रहे जो परमेश्वर ने आपको दिया और आप बढ़ते रहें, sooner or later you will realize and you will understand that it was all in God's plan and आज purpose. नहीं तो कल आपको ये निश्चय हो जाएगा कि ये सब परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य था। For God to do anything
anything in our lives, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। we need to stay planted. यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करे तो हमें रोपे If जाना we है। don't stay planted at a place, then we cannot bear fruit. यदि हम रोपे ना रहे तो पर हम फल को नहीं ला सकते। Many times we are planted, but still we feel like not fulfilling the purpose of our life. कई बार हम रोपे तो गए हैं लेकिन हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख पा It रहे हैं। seems so mediocre, so average in our lives. ऐसा लगता है कि हम बहुत औसतन हैं। But if we can stay planted, लेकिन यदि हम वहां पर बने रहें we can be assured of this, तो मैं ये सुनिश्चित करता हूँ that the master gardener has a plan and purpose for कि your वो जो life. माली जिसने आपको रोपा है उसका आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। God has created us with a special gift, परमेश्वर ने हमें एक विशिष्ट वरदान के साथ बनाया and He है has a plan and purpose for all of us. और हम सबके लिए उसने एक योजना और एक उद्देश्य रखा है। And if we do not use or employ the gifts that He has given to us, we are stopping other people being blessed by our और lives. यदि हम उस वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम लोगों को आशीषित होने से वंचित रख रहे हैं। God has planted us परमेश्वर ने हमें रोपा है। in our jobs, in our colleges, in our universities, wherever we हमारे are. कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय में, जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम हैं, Even in this time of pandemic, इस महामारी के समय में भी God has planted many of us at different places परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग स्थानों पर रोपा है with His plan and purpose so that we can be a blessing to people around us. एक योजना और एक उद्देश्य के तहत, ताकि जहाँ पे हम हैं वहाँ पर हम लोगों को आशीषित कर पाएं। We are to bloom where we are planted. जहाँ पर हम रोपे गए हैं वहाँ पर ही हमें पनपना है, फूलना और फलना है। However difficult your circumstances may be, चाहे आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। you may say that you don't understand how tough things are at my हो workplace. सकता है कि आप मुझसे कह सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे परिस्थितियाँ कितनी कठिन You हैं। may say that I'm facing so much challenges in my health, in my relationship, in my finances. You will never understand it. मैं अपने स्वास्थ्य में, मैं अपने आर्थिक चीजों में, मैं अपने रिश्तों में कितनी मुश्किलों का सामना कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता। Yes, that is right. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही है ये। Maybe no man can हो understand, सकता है कोई भी ना समझ पाए, but God can. लेकिन परमेश्वर समझ सकते The हैं। one who has planted you in your place, जिसने आपको आपके स्थान पर रोपा है वो समझ सकता He है। knows the pain and everything that you go through, जिस दर्द से होके आप गुजर रहे हैं परमेश्वर वो जानता the है। challenges that you face. जिस चुनौतियों का आप सामना कर रहे And हैं, God knows that even in that circumstance you can bloom. और परमेश्वर ये जानता है कि उस परिस्थिति में भी आप फल और फूल सकते हैं। Or maybe there are others who are saying, if I could just get out of this situation, or get out of this job, or get out of this locality, I will start flourishing and start being a blessing. हो सकता है हम में से कोई ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि यदि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इस स्थान से निकल जाऊँ, इस नौकरी से निकल जाऊँ, तो शायद मैं पनप सकता हूँ, मैं फल और फूल सकता हूँ और मैं आशीष का कारण हो सकता हूँ। But God is telling us that I have planted you and you can flourish and blossom in where you लेकिन are. परमेश्वर ये कहते हैं कि जहाँ पर मैंने तुम्हें रोपा है तुम वहीं पर ही फल और फूल सकते हो। You can bloom even in the toughest of circumstances. हो सकता है परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप पनप सकते हैं। In 1 Corinthians chapter 7 verse number 17. पहला कुरिन्थियों 7 और उसका 17। I'm reading in Message Bible मैं translation. मैसेज बाइबल अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। Don't be wishing you were someplace else or with someone else. आप ये कल्पना ना करते रहे कि काश मैं कहीं और पर होता या किसी और स्थान पर होता। Where you are right now आप जहाँ पे इस समय हैं is God's place for you. वही परमेश्वर का स्थान है आपके लिए। Where you are right now जिस स्थान पर आप अभी हैं is God's place for you. वही परमेश्वर ने स्थान आपको दिया Where है। you are right now जिस स्थान पर आप अभी हैं is God's place for you. वही परमेश्वर का स्थान है आपके लिए। Live जिए and obey आज्ञा पालन करें, and love प्रेम करें and believe और विश्वास करें right there in that place. उसी स्थान पर। You can make a difference right where you are. जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप बदलाव को ला सकते In हैं। your school, in your university. अपने स्कूल में, अपने विश्वविद्यालय में। You may be saying that it's very tough, it's very challenging times. हो सकता है आप कह रहे हो कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। You may not be in a perfect job or a perfect place. हो सकता है कि आप बिल्कुल सही नौकरी में या बिल्कुल सही स्थान पर ना हो। You may be surrounded by really difficult people. हो सकता है कि आपके चारों ओर बहुत ही मुश्किल लोग हैं। You may even feel like you are planted amongst the weeds. आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप अच्छे पौधों के बीच में नहीं रोपे गए हैं। You may have a really difficult boss. आपके बॉस के साथ आपको बहुत ही परेशानी हो रही And है। it is possible that you are underpaid or underappreciated. हो सकता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो
वो उतना नहीं हो जितना आपको चाहिए, या फिर आपको कोई सराहना नहीं मिल रहा। But at the end of the day, we are not working for our boss, लेकिन हम अपने बॉस के लिए काम नहीं कर but रहे we हैं। are working for the Lord in the place where He has planted जिस us. स्थान पर परमेश्वर ने हमें बोया है, हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। Colossians chapter 3 verse number 23. कुलुस्सियों 3 और उसके 23 में हम पढ़ते हैं, Work willingly at whatever you do, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, as though you were working for the Lord rather than for people. यह समझकर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Every season you go through जिस ऋतु से भी हो कि आप गुजर रहे हैं, will prosper you in Him. वो आपको पनपने देगा परमेश्वर में। You will bear fruit in every season. हर ऋतु में आप फलवंत होंगे। Even if the growth doesn't look how you think it is supposed to be. हो सकता है बढ़ोतरी वैसा ना दिख रहा हो जैसा आप चाहते हैं कि दिखे, Or it may not look as good as it was in the past. या अतीत में जैसा बढ़ोतरी आपने देखा, हो सकता है वो उतना अच्छा ना लगे। It doesn't mean you are doing something wrong. इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। Our job is to stay planted by the streams of water. हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हम बहती नदियों के किनारे पर लगे रहें, And leave the rest up to Him. और बाकी हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। The streams of water is God's presence, to live in His presence or to live in His word, to live in fellowship with God. बहती नदी का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के साथ संगति में रहना। And if you have never ever come into a personal relationship with God, और यदि आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं आए हैं, then this may be a time for you to invite Jesus into your heart. तो ये वो समय होगा कि आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं। We don't have to be perfect. हमें सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं। We don't have to be educated or rich or poor. He has no parameters like that. ये आवश्यक नहीं है कि हम पढ़े लिखे हो या अमीर हो या गरीब हो, ऐसा कोई भी नाप तौल नहीं है। We just have to invite Him into our हम hearts. सिर्फ परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करें। If you have never experienced Jesus in your life, यदि आपने कभी भी यीशु का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, right there in your house, in your chair, in your sofa, wherever you are sitting or standing, अभी इसी वक्त आप अपने घर पे, अपने कुर्सी पे, या फिर आप जहाँ कहीं भी हो, you can say, Lord Jesus, come into my heart. आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु यीशु आप हमारे हृदय में आए, And He will come into our hearts. और वो आपके हृदय में आएंगे। A simple prayer, a simple decision that we take, एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा निर्णय जो हम लेते हैं, it changes our life forever. वो हमारे जीवन को सदा के लिए बदल के रख देता है। God has planted us. परमेश्वर ने हमें रोपा है। He has given us resources to grow wherever we are. उसने हमें वो स्रोत दिया है जहाँ पर भी हम हैं, And He has planted us with a purpose. और उसने हमें एक उद्देश्य के तहत रोपा है। Sometimes it may seem so dark. कई बार हो सकता है कि हमें चारों तरफ अंधेरा दिखे, We may not understand what will be God's purpose in a time like this. हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे समय में परमेश्वर का क्या उद्देश्य हो सकता है। It is not buried. हो कि हम चिंता ना करें, It is just planted. वो दफनाया नहीं गया, लेकिन वो बोया गया है। But we have a responsibility also. हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Many times we act as if we are not planted, but we have been put in a pot. हमारे पास जिम्मेदारियां भी हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम रोपे नहीं गए हैं, लेकिन हमें एक गमले में रख दिया गया है। What happens when we think that we are in a pot is we keep on changing our place, one place here and one there, as it feels good to us, to our eyes. और जब हमें ऐसा लगता है कि हम एक गमले में रोपे गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने स्थान को बदलते रहते हैं जैसा हमें पसंद आए। But when we say planted, लेकिन जब हम बोलते हैं कि रोपा जाना, it talks about 100%. वो 100% की बात होती है। Till the gardener comes and removes me from this place, जब तक माली आकर आपको उस स्थान से ना हटाए, I am committed to that spot. तब तक मैं उस स्थान के लिए समर्पित हूँ। I'm committed to this job or to this family, to this church. I don't know what it is for you, but till the gardener comes and removes me, I am committed to that. मैं नहीं जानता आपके लिए क्या है, लेकिन आप जिस भी नौकरी में है, जिस भी चर्च में है, जिस भी परिवार में है, आप जब तक माली आके आपको नहीं हटाता, तब तक आप वहां के लिए समर्पित हैं। And we need to understand this. और हमें ये समझना जरूरी है। God never makes a mistake when He's planting. परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करते जब वो रोपते हैं। He's not into the business of doing a mistake
and then correcting it. और परमेश्वर ऐसा नहीं करते कि पहले उन्होंने गलती कर दी और फिर उसको सुधार रहे हैं। He has planted you in the right place. परमेश्वर ने आपको बिल्कुल सही स्थान पर रोपा है। Shall we close our eyes and look unto God? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में परमेश्वर को देखें। Even in these tough and challenging times, इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में भी there is a plan and purpose why you are still there where you are. एक उद्देश्य है इस चीज में कि आप जहां पर हैं वहां पर क्यों हैं। Why we as an individual, or you as a family, or we as a church, why are we here in the city, or you may be in a different place? There is a purpose for that. हम एक व्यक्ति के रूप में या परिवार के रूप में या चर्च के रूप में जहां कहीं भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, उसका एक उद्देश्य है। And the purpose is that we can glorify God. और उद्देश्य ये है कि आप परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करें। We understand that we have so much challenges in our life. हाँ, हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। Sometimes it's so overbearing. कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है ये सब। Sometimes we feel so broken inside. कई बार हम अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। Unexpected things happen. जिस चीज की हमने अपेक्षा नहीं की थी वैसी चीजें हो जाती हैं। The place where you are planted, जिस स्थान पर आप रोपे गए हैं, you have grown so strong आप इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं that you can withstand all those winds that come in your life. कि जो भी चीजें आपके विरोध में आ रही है आप उसका सामना कर सकते हैं। You may feel that disappointment for some time, हो सकता है कुछ समय के लिए आप निराशा महसूस कर रहे but this is just a passing wind. हैं, लेकिन ये चीज गुजर जाएगी। Lord, we thank you for this wonderful time that you've given us this Sunday. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज इस रविवार को आपने हमें As we दिया। all could join together from different places, from our houses where different devices, still we can come together as a body of Christ as one in your name. अलग अलग स्थानों से, अलग अलग डिवाइसेस से, अलग अलग घरों से हम जुड़े हैं, फिर भी हम एक साथ होकर आपके नाम में जुड़े हैं। We give you glory and praise from this place, Lord. इस स्थान से आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु। Lord, we thank you for the place where you have kept us. धन्यवाद प्रभु उस स्थान के लिए जहां पर आपने हमें रखा है। We thank you for the place, Lord, where you have brought us at this time. उस स्थान के लिए धन्यवाद प्रभु जहां पर इस समय में आप हमें लेकर आए हैं। Lord, we may not understand what is going on in my life. हम नहीं समझ पा रहे हैं शायद कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। Sometimes just like Lot, we may be tempted to look at the fertile lands or something else that is happening in others' life, and we also want to follow that or do that. कई बार लूत के समान हमारी आंखें उस सींची हुई तराई की तरफ जाती है जो हमें अच्छा लगता है या फिर जो दूसरे कर रहे हैं और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जाना चाहते हैं। But Lord, here in your presence we confess and we say it is your presence that I need. लेकिन आपकी उपस्थिति में हमें अंगीकार करते हैं प्रभु की आपकी उपस्थिति की हमें जरूरत है। Because when you are with us, Lord, क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं प्रभु, even the desert is better than green pastures. तो वो मरुभूमि भी उस हरी तराइयों से ज्यादा अच्छी है। Lord, we pray for people who are going through sickness, Lord. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमारी से होकर गुजर रहे In the हैं। last few weeks we have had so many prayer requests. पिछले सप्ताह में बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए। People who have been infected by this COVID and many other challenges that people are going through. कई लोग इस कोविड वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं और बहुत सारे अलग चुनौतियां हैं जिससे होकर वो गुजर रहे हैं। Lord, we pray for your healing hand to come upon them. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि चंगाई करने वाला आपका हाथ उनके ऊपर आए। Lord, your word says that you send your word and you heal them all. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया। Lord, we pray let your healing virtue flow through in their bodies, पर Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई उनके शरीर से होकर गुजरे। Lord, we pray for people who are students, Lord, and people who have lost their jobs or finding tough in their job, oh Lord. हम उन छात्रों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं या फिर नौकरी के स्थान पर मुश्किल है। Even with the current shutdown and everything that's happening, we ask for your grace and mercy upon them. अभी जो हर जगह बंदी हो रही है इस सिचुएशन में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। Lord, we pray that you lead them and guide them, oh Father. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको अगुवाई करें Lord, और you keep मार्गदर्शन them under करें। your mighty care. अपने You protect them, Lord, under your wings. परमेश्वर आप उनको अपने
पंखों के नीचे सुरक्षित रखें। Lord, we commit each and every person into your hand. हम सबको आपके हाथों में सौंपते We हैं। commit every need, every heart cry into your हर hands, एक Lord. जरूरत, हर एक हृदय की पुकार हम आपके हाथों में सौंपते हैं। You प्रभु। are the Jehovah Jireh in our lives. आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं। You are the provider in our lives, Lord. आप परमेश्वर हैं जो हमें मुहैया कराते And we हैं। give you all glory, honor and praise from this हम place. सारा आदर, मान और महिमा आपको इस स्थान से देते हैं। Give us grace to know that you have planted us where we are. आप हमें अनुग्रह दे कि हम ये जानने पाए कि आपने हमें वहां पर रोपा है जहां पर अभी हम We हैं। pray that you open our eyes so that we may see that there are enough resources for me to grow and flourish in this place. हो परमेश्वर कि आप हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम ये देखने पाए कि आपने हमें वो स्रोत दिया है जिससे हम बढ़ सकते हैं। At the same time, help us understand that there is a purpose for which you have brought me to this place. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ये समझ सकें कि एक उद्देश्य है उस स्थान पर जहां पर आपने हमें रखा है। We commit everything into your hands. हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। And in Jesus' mighty name we pray. और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Shall we say the grace together? आइए हम मिलकर अनुग्रह वचन बोले। Grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.